اور کیوں لوگ گول سیٹنگ کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ گول سیٹنگز ہے کیا. آپ یاد رکھیے گا زندگی میں کبھی بھی گولز نہیں بنا سکتے, یا اگر بنائیں گے تو وہ پورے نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, وہ مسنگ ہوتا ہے, اور وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ریزننگ کا. گولز آر سمپلی ان ایکشن پلان, سمپل. مجھے یہ اچیو کرنا ہے, مجھے یہ حاصل کرنا ہے, مجھے یہ لینا ہے, مجھے یہ ریسیو کرنا ہے, یا مجھے فلاں تاریخ تک یہ کام مکمل کرنا ہے. بٹ اس کے پیچھے جو ریزننگ ہے وہ مسنگ ہوتی ہے, اور جب ریزننگ مسنگ ہوتی ہے تو آپ کا انکانشیس مائنڈ یا انکانشیس لیول ہے جو ہے وہ آپ کو یہ ہمیشہ سے اس کام کو اچیو کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے, اگر آپ آج کو آپ کو ٹارگیٹ دے دیا جائے کہ جی آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے, بینگ اے سیلس پرسن آپ کو سب کو ٹارگیٹ دیے گئے اور ٹارگیٹ دیے گئے کہ جی منتھلی آپ نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ نے گول بنا لیا کہ جی میرا یہ گول ہے, آپ سامنے لکھ کے بھی لگا لیں, اپنے پاس لکھ لیں, لیکن اس کے پیچھے ریزن مسنگ ہے. کیوں کر رہے ہو؟ مطلب 8 ملین کا ٹارگیٹ ہے, 100 ملین کا ٹارگیٹ ہے, 10 ملین کا ٹارگیٹ ہے, واٹ ایور دا ٹارگیٹ از, واٹ ایور دا نمبر از, واٹ ایور دا specific action that is required or expected of you, but still you are unable to achieve it because اس کے پیچھے ریزن مسنگ ہے. اور ریزن کو ٹیکنیکلی یا عرف عام میں آپ یہ کہہ لیں اس کو پرپز کہا جا رہا ہوتا ہے. So there is a difference between purpose and goal. Goals are the action plans, but goals are always backed by the reason, and the reason is called purpose. ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں, ویسے دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ کو جو ہائی اچیورز نظر آتے ہیں ان کے ایکشنز اور ان کے اچیومنٹس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو وہ بظاہر وہ بیوقوف نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کا شخص ہے کہ جو کہ پتہ نہیں کون کون سی چیز اچیو کر لیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا ہے, کتنا زبردست قسم کا انرجی لیول ہے, اور یہ کیسے اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے لائف میں. اس کے پیچھے ایک گول ہو رہا. گول تو ہوتا ہی ہے, لیکن گول کے پیچھے جو ہے وہ بیکنگ ہوتی ہے ریزننگ کی, اسٹرانگ ریزن موجود ہوتا ہے. ایگزامپل لیتے ہیں, یہ جملہ بڑا مشہور ہے, دس از ناٹ اے موٹیویشنل سیشن, لیکن آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ اسٹیو جاب نے جب پیپسی کے سی ای او کو انوائٹ کیا تھا اپنی کمپنی کے اندر, تو کہا تھا, یعنی وہ چاہتا تھا کہ پیپسی کا جو سی ای او ہے وہ اس کی کمپنی میں آ کے کام کریں. تو یہ بہت پرانی بات ہے, تو اس نے ایک جملہ کہا تھا اس کو کہ تم کیا کرنا, جان نام تھا اس کا, جان سکلی نام تھا, تو اس کو کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو, تم کیا ساری زندگی جو ہے وہ ایک میٹھا پانی بیچنا چاہتے ہو, یا میرے ساتھ آنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ آ کے دنیا کو بدلنا چاہتے ہو. ناؤ دس از سو پاورفل کہ وہ شخص کہتا ہے کہ یار یہ جو جملہ تھا اس نے اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے اسی کو چینج کر دیا, کیونکہ اس جملے کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی ریزننگ تھی کہ میں پوری زندگی کرنا کیا چاہتا ہوں, کیا پوری زندگی صرف اور صرف میٹھا پانی بیچوں گا لوگوں کو, یا پھر جو ہے وہ میرے اس کے ساتھ جوائن کر کے جو ہے وہ زندگی بدلوں گا. بہرحال وہ بعد میں اسٹوری ایک ڈفرنٹ نکلتی ہے کہ وہ اس کو جوائن تو کر لیتا ہے, لیکن بہت ہی جلد جو ہے وہ اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے, کیونکہ دونوں کے خیالات جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن دس پرٹیکولر سینٹینس از سو پاورفل, اس کے پیچھے ریزننگ جو تھی وہ کلیئر ہو جاتی ہے. سو دنیا میں جتنے بھی ہائی اچیورز آپ کو ملیں گے وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ریزن لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ونس آپ کا ریزن کلیئر ہے تو آپ کے لیے گول سیٹنگ یا انڈیویجل اسٹیپس بنانا یا اس کے بارے میں سوچنے کہ اب کیا ہونا چاہیے, اب کیا ہونا چاہیے, اب کیا ہونا چاہیے, یہ سب بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. وہ آٹومیٹکلی بننا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو بیٹھ کے الگ سے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا پڑتا کہ آج میرا گول کیا ہوگا یا اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے کیا اچیو کرنا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو ریزننگ ہے وہی آپ کو جو ہے آپ کے گولس کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. سو دس از ون آف دا تھنگس, ون آف دا فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ پرائمری فیکٹرز آف لیڈنگ یور لائف, کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کر رہے ہیں. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, صحیح اور غلط کی بات نہیں ہو رہی ہے فی الحال. ایلون مسک کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آئی ایم ناٹ اے ایلون مسک فرینڈ, لیکن کچھ باتیں اس کی بہت اچھی لگتی ہیں اور کچھ باتیں جو ہے وہ obviously اس سے میرا اختلاف ہے. لیکن ایلون مسک کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا بھی کوئی پرپز ہے. اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم کرنا کیا چاہتے ہو, تو کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ مارس پہ جانے کے قابل ہو جائے. مطلب وہ اس لیول ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ جو اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے وہ فاسٹسٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بنا دوں, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جو لوگوں کو دقت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, وہ نہ ہو. یہ اس کا پرپز ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کیوں چاہتے ہو کہ لوگ مارس پہ جائیں, تو کہتا ہے کہ یار ہم نے زندگی جو ہے وہ زمین کو تو خراب کر دیا, مارس کو جا کے خراب کرتے ہیں. جوکس اپارٹ, ایسا کچھ نہیں کہتا وہ. اس کا ریزن وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ مارس ایک ہیومن بینگ کے اندر یہ صلاحیت ہے, پوٹینشیل ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتیں, پوٹینشیل جو ہے وہاں پہ جا کے بھی آبادی کو جو ہے وہ جو ہے زندگی کو آباد کریں, اور مارس پہ بھی جو ہے زندگی آباد ہو سکتی ہے, یہ پاسبلٹی ہے. سو اس کے ذہن میں ایک ویژن ہے, اس کے ذہن میں ایک سوچ ہے. وہ سوچ اور ویژن جو ہے وہ اس سے بڑے بڑے کام کروا رہی ہے, مشکل سے مشکل کام کروا رہی ہے. بظاہر آپ کو اس کی انویسٹمنٹس اور اس کی جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی ویئرڈ سی ہے اور انکنیکٹ, مطلب آپس میں ارریلیونٹ ہے, آپس میں کنیکٹڈ نظر نہیں آتی ہے. لیکن سم ہاؤ وہ جو سوچ رہا ہے, وہ جس طرح سے اپنی بزنس ڈیسیژنس لیتا ہے,
वो अपने गोल्स को, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए ले रहा है। वो कभी ट्विटर बाय कर लेता है, तो कभी जो स्टारलिंक की तरफ चला जाता है। तो वो आप नोट करेंगे वो कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। किसी न किसी तरीके से वो कम्युनिकेशन को जो है वो क्या कर रहा है, इनहांस कर, कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनहांस करने की कोशिश कर रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑन इलॉन मस्क फिलॉसफी या स्ट्रैटेजी या वो जो क्या करता है क्या नहीं करता, बट अगेन द पॉइंट इज उसकी भी क्या है, लाइफ में एक पर्पस मौजूद है, एंड द पर्पस एक्चुअली ड्राइव्स इट, और वो इतना पावरफुल है कि उससे से मुश्किल काम भी उसके लिए आसान हो जाते हैं। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है? इट्स एज सिंपल एज दैट। सुबह आ रहे हैं, गोल सेटिंग है, ठीक है, टारगेट अचीव करना है, और टारगेट अचीव करने के लिए 10 क्लाइंट से बात करनी है, 50 क्लाइंट से बात करनी है, मीटिंग्स करनी है, नंबर्स क्लोज करने हैं, बट वाई? एक वक्त आएगा उस एक्शन, अगर इसके पीछे पर्पस नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो ये एक्शन जो आपने किया है इससे आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे। अगेन कुछ वक्त के बाद आपको लगेगा यार ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ये काम ही फजूल सा है। तो वही वाली बात आ गई। शुरू में हमने जो बात की थी, आपको याद होगा, हमने पिछले कुछ सेशंस में बात की थी, एक होती है मोटिवेशन अवे और दूसरी होती है मोटिवेशन टुवर्ड्स। तो चूंकि आपको पर्पस नजर नहीं आ रहा, पर्पस है ही नहीं, तो उसके पीछे आप क्या करेंगे, आप बोर हो जाएंगे और आप कहेंगे यार इस इन्वायरमेंट से निकलते हैं, और आपकी जो काम करने की जो मोटिवेशन होगी वो सिर्फ यही होगी कि आई हैव टू टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू लीव दिस करंट प्लेस और इन्वायरमेंट। सो ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड है किसका, आज के सेशन का, कि जी पर्पस और गोल्स में क्या फर्क है, और अगर ये क्लियर हो जाए तो मेरे और आपके लिए आगे बढ़ना आसान है। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द 5 एक्शन पॉइंट्स जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो अगर एक्शन पॉइंट्स मैं और आप समझ लें या उनको फॉलो करना शुरू कर दें डेली बेसिस के ऊपर, तो आपके लिए और मेरे लिए जो है वो जिंदगी को आगे लेके चलना या लीड करना, डेली लाइफ को लीड करना या उस पर्पस को अचीव करने में हमारी हेल्प हो सकती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है डेली रिचुअल्स के अंदर, आपको याद होगा एनर्जी। एनर्जी इज मोर वैल्यूएबल देन योर इंटेलिजेंस लेवल। अगर आपकी एनर्जी लेवल ही नहीं है आपके अंदर, तो इंटेलिजेंस लेवल क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। So you have to protect your energy level, and in order to protect your energy level, you have to think how you are actually starting your day. How you're going to start your day is first and foremost questions that you should be asking to yourself कि मैं अपना दिन शुरू कैसे कर रहा हूँ। So इसीलिए कहा जाता है कि start your day by sweating. पसीना निकाल के अपना दिन जो है वो शुरू करें। अब पसीना निकाल के दिन शुरू करने का मतलब ये है कि आप जो है कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। मैं यहां पर बैठा हूं, आप यहां पर बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक्सरसाइज सुबह कर आए हैं या मॉर्निंग वॉक करके आए हैं या फिजिकल एक्टिविटी करके आए हैं। कुछ लोग करके आए होंगे, उनके एनर्जी लेवल में और बाकियों के एनर्जी लेवल में एक जमीन आसमान का फर्क होगा। रीजन बीइंग कि जो फिजिकल मूवमेंट यहां आके करनी है वो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? कि आप यहां पर आके एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर आके बैठ जाते हैं। नाउ दिस इज अ प्योर साइंस, दिस इज नो फिलॉसफी। कोई फिलॉसफी, कोई जो है वो फजूल बातें नहीं हो रही हैं। दिस इज कम्प्लीटली साइंस बैक्ड थ्योरी कि आप जब सुबह स्वेट करते हैं तो आपकी बॉडी से एक BDNF रिलीज होता है, एंड BDNF इज कॉल्ड ब्रेन ड्रिवन न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये बेसिकली आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके एनर्जी लेवल और मेटाबॉलिज्म लेवल को जो है वो इम्प्रूव करता है, और आप जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे होते हैं। नाउ अब करना क्या चाहिए? सर कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर लेट सोते हैं रात को, सुबह नहीं उठ पाते, तो कैसे करें? उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट योर डे विद 10 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी। घर पे बैठे बैठे आप जो है वो 10 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी कर लें। यू कैन स्टार्ट स्किपिंग, यू कैन स्टार्ट रनिंग, यू कैन स्टार्ट जॉगिंग ऑन द सेम प्लेस वेयर यू आर एट। ठीक है, वहां पे बैठ के जो है वो आप ये सिंपल एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आपका पसीना निकलना शुरू हो। सिंपल एज दैट। ठीक है, नॉर्मल एक जेंटल फिजिकल एक्सरसाइज जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपका पसीना निकलना शुरू कर। मे बी इट एट 10 मिनट्स, डू इट फॉर 10 मिनट्स, कोई मसला नहीं है, उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज आपको जो है वो यू हैव टू स्टार्ट योर डे बाय स्वेटिंग। ठीक है, पसीना निकाल के अपने दिन की शुरुआत करें। द अदर वन इज टाइम ब्लॉकिंग। थिंग्स दैट गेट स्केड्यूल्ड गेट्स डन। जो चीजें स्केड्यूल्ड नहीं होती हैं वो कभी होती भी नहीं है। अब स्केड्यूल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं टू डू लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं टास्क लिस्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आपने टास्क लिस्ट बनाई, सुबह आए ऑफिस में कि जी मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है और जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, जितने भी आपको हाई परफॉर्मेंस अचीवर्स मिलेंगे, आप जब उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, तो आपको एक यूनिक फीचर उनके नजर आएगा, उनकी यूनिक प्रैक्टिस नजर आएगी। वो यूनिक प्रैक्टिस ये है कि वो अपनी क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को अलग अलग करते हैं। हर वो काम जो कि नॉन क्रिटिकल है, जो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कोई जो है वो
कहते हैं कि टाइम जाया करने वाली अगर एक्टिविटीज हैं, ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत ज्यादा का इम्पैक्ट इस तरह से नहीं है कि जी वो उनके फोकस लेवल को इम्प्रूव नहीं कर रहा है या फिर जो है वो डिस्ट्रैक्शन लेवल को कम नहीं कर रहा, तो वो उसको अलग कर देंगे। और वो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बिल्कुल अलग कर देंगे, राइट। मिसाल के तौर पे हमेशा आपने देखा होगा जितने हाई अचीवर्स हैं उनका स्केड्यूल डेली बेसिस पे नहीं बनता, उनका स्केड्यूल हमेशा या तो मंथली बेसिस पे बनेगा या फिर वीकली बेसिस पे बनेगा। दे सिट अलोन, अकेले बैठते हैं और वो अपने अगले एक हफ्ते का स्केड्यूल बना के बैठ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं आज यहाँ पर कई बार मिला हूं जो कि कोई बहुत ज्यादा सीईओ लेवल पर नहीं है, कोई हेड लेवल पर नहीं है, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब एक किसी अच्छी पोजीशन पे भी नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल, वो अपनी अपनी कैपेसिटी में रह के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनको इनकी एक्टिविटीज को देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि जब भी मैं उनसे कोई काम के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी मीटिंग के लिए टाइम मांगता हूं तो वो टाइम नहीं देते। वो कहते हैं सर लेट मी सी माई स्केड्यूल, एक सिंपल सा जवाब आता है लेट मी सी माई स्केड्यूल, और वो मुझे स्केड्यूल दिखा देते हैं कि जी सर देखिए मेरे पूरे वीक का स्केड्यूल ये है, तो मैं आपसे नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। वेरी सिंपल, इज एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि उनको डेली बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है उसको वो उस पर जाया नहीं करना चाहते। सो दे व्हाट दे डू इज, वो संडे को बैठेंगे, छुट्टी वाले दिन बैठेंगे, अलग बैठेंगे और उस दिन बैठ के जो है वो अगले पूरे एक हफ्ते की एक्टिविटी डिसाइड कर लेंगे कि मैंने क्या करना है। अब नाउ जब वो एक एक्टिविटी डिसाइड कर चुके होते हैं पूरे हफ्ते की, तो उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट दे आर सपोज टू डू, और वो उससे हटते नहीं। जब वो उससे हटते नहीं तो ऑब्वियसली वो अपने गोल्स को फॉलो कर रहे होते हैं एंड देयर आर हायर चांसेस कि वो चीजें अचीव हो जाती है। सो दिस इज नो मोटिवेशनल सेशन, दिस इज अ पर्टिकुलर साइंटिफिक बैक थ्योरेटिकल सेशन है जिसके अंदर हम जो आपको वो चीजें, वो पॉइंट्स बता रहे हैं कि जो कि एक्शनेबल है और जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी आप वो काम कर सकते हैं और करके जो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज, तो पहला पॉइंट था स्टार्ट योर डे विद स्वेट, दूसरा पॉइंट था टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग के अंदर जो है वो आप अपनी टाइम को फिक्स कर लेते हैं कि मुझे किस वक्त क्या काम करना है और कितनी देर के लिए करना है। टू डू लिस्ट में जस्ट होता है कि मुझे ये करना है, बट आप प्रैक्टिकल नहीं होते कि कौन सा काम कितनी देर का होगा। यहाँ पर आप टाइम ब्लॉक कर देते हैं कि मैंने इतनी देर से इतनी देर तक ये काम करना है, इतनी देर से इतनी देर तक ये काम करना है, जिम जाना है तो मैंने इतनी देर जाना है, इतने दिन जाना है, अगर मैंने सुबह एक्सरसाइज करनी है तो इतने दिन करनी है, इतने वक्त के लिए करनी है, मेडिटेशन करनी है तो इतने दिन के लिए करनी है, इतने वक्त के लिए करनी है, राइट। फैमिली टाइम है तो ये वक्त होगा और ये टाइम होगा और ये इस तरह का स्केड्यूल होगा। सो टाइम ब्लॉकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगला, रिचुअल्स ऑफ ओवर डिलीवरी। याद रखिएगा कि आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको एवरेज परफॉर्मर कौन नजर आएगा पता है? या तो वो वही डिलीवर करता है जो उससे एक्सपेक्ट होता है या उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, या फिर वो उससे एक्सपेक्टेशन से कम डिलीवर करता है। दे आर कॉल्ड एवरेज परफॉर्मर्स। आपको हाई परफॉर्मर्स या हाई अचीवर्स वही नजर आएंगे कि जो कि ओवर परफॉर्म करते हैं। अब ये ओवर परफॉर्मेंस किस बेंचमार्क के तहत होगी? क्या ओवर परफॉर्मेंस वही है कि जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इतना परफॉर्म करेंगे, आपने उससे ज्यादा परफॉर्म करके दिखाया, या आपकी ओवर परफॉर्मेंस जो है वो आपकी अपनी जात से होगी? मिसाल के तौर पे आपने डेली बेसिस पे, आपसे एक्सपेक्टेशन, आपको टारगेट यहाँ पे मिलता है कि डेली बेसिस पे आपने जो है वो 2 मीटिंग्स करनी है। सो ना 2 मीटिंग्स करनी है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन दैट इज द कंपनी और योर सीनियर्स आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू। लेकिन आपने अपने आप से एक्सपेक्टेशंस लगाई है कि यार मैंने कल 2 मीटिंग्स की थी तो आज मैंने 3 करनी है, या कल मैंने 1 क्लोजिंग की थी तो अब मैंने क्लोजिंग रेट को बढ़ाना है, राइट। सो आप ओवर डिलीवरिंग जो है वो किससे मैच कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? सो दिस इज द रिचुअल कि जिसके अंदर आप ओवर डिलीवरी को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस में ला रहे होते हैं। एंड व्हेन यू डू इट, चाहे वो आप सेल्स वाले हो या नॉन सेल्स वाले हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन सेल्स के अंदर हैं, तो वो भी अपने आप को ये इस रिचुअल से जो है गुजार सकते हैं कि द रिचुअल्स ऑफ ओवर डिलीवरी मीन्स यू डोंट हैव टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, बट यू आर डूइंग मोर ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है उससे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है कि किसी और शख्स की हो, वो एक्सपेक्टेशन आपकी अपने आप से भी हो सकती है। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट एंड इनकलकेटिंग दिस हैबिट, दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इन योर रूटीन लाइफ, यू कैन सी द मैजिक इन योर लाइफ। आपको नजर आएगा कि यार मैं वाकई में परफॉर्म करने जा रहा हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप जो है वो अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द 4th रिचुअल और 4 एक्शन पॉइंट्स दैट आई आस्क्ड यू टू डू और मैं जस्ट डिस्कस्ड। The first one is start your day sweating. Time blocking. तीसरा था over delivering. Okay. The 4th one is, I'm sorry, this was the 3rd one, and the 4th one is every master thinks like a beginner. Never think yourself as a master.
Never ever think yourself as a master. आपको बहुत सारे हाई परफॉर्मर्स जो है वो सीखते हुए नजर आएंगे. हमारे यहाँ मसला ये होता है इन पाकिस्तानी कल्चर, नॉट ओनली यू गाइस, कि जब डेजिग्नेशन मिल जाती है या जब कोई पोजीशन मिल जाती है, सो वी स्टार्ट थिंकिंग और वी स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मास्टर. वो उस वक्त होना चाहिए जब आपकी परफॉर्मेंस हो रही है. परफॉर्मेंस में आप अपने आप को जो है वो एक्ट लाइक अ मास्टर, एक्ट लाइक अ एक्सपर्ट, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल देता है. When it's about learning, when it's about self-improvement, when it's about self-development, you always have to start thinking like a beginner. And once you do it and you inculcate this habit in your routine life, you see the magic. आपकी performance level का जो graph है, जो learning curve है, वो कैसे improve होता है, right? So this was the fourth one. And the last but not least, and one of my favorite part is, one of my favorite rituals is self-reflection. Self-reflection in this today's 21st century is so important that you can't realize until and unless you feel its after effects. आपको पता नहीं चलेगा उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जब तक आपको उसका आफ्टर इफेक्ट्स ना पता चले. क्यों? क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इस सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हर एक शख्स को जो है वो ये है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इज सो इमर्स्ड इन आवर लाइफ कि मुझे और आपको जो काम नहीं करने देती वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ही है. और ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता. आई कैन बैट हियर, जितने लोग इस वक्त तकरीबन कोई 150 के अराउंड कोई ऑडियंस होगी शायद इस वक्त मेरे ख्याल में, या 100+ ऑडियंस है इस वक्त. ये 100+ ऑडियंस जो है, मैं इस वक्त सबसे अगर इंडिविजुअल सवाल कर लूं तो शायद कोई ऐसा हो जो ये कहे मुझे कि सर मेरा तो कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता. हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, कोई ना कोई रीजनिंग होती है. बट सारी मोटिवेशनल स्पीचेस, सारी रेगुलर वीडियोस देखने के बाद, लर्निंग देखने के बाद, सेमिनार्स अटेंड करने के बाद, स्टिल वी आर अनएबल टू अचीव और वी आर अनएबल टू परस्यू आवर गोल्स. द ओनली रीजन इज वी रिमेन डिस्ट्रैक्टेड. क्यों? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज हमें ज्यादा मुतासर कर रही है वो डिस्ट्रैक्शन लेवल कर रहा है. और वो कैसे होता है? डिस्ट्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट और पुट योर अवेयरनेस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप ज्यादा देर तक अपनी अवेयरनेस किसी एक चीज पे नहीं रख पा रहे तो दैट मीन्स कि आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. यानी कभी इधर सोच रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं. जो रैंडम थॉट्स आ रही हैं और रैंडम थॉट्स जो है वो आपकी अटेंशन लेवल को ग्रैब कर रही हैं. और जब वो अटेंशन लेवल को ग्रैब करती हैं तो इसका मतलब है आपका फोकस लेवल लूज होता है. एंड योर फोकस लेवल इज लूजिंग. व्हेन यू आर लूजिंग योर फोकस लेवल, सो यू आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. सो व्हाट टू डू? करें क्या उसके लिए? स्टार्ट सिटिंग इन सॉलिट्यूड. अकेले बैठना शुरू करें. एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स पर डे. 10 मिनट के लिए बैठना शुरू करें अकेले. हर एक के साथ जो है अलग हो जाए, डिस्कनेक्ट कर लें अपने आप को, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दें सारे गैजेट्स के साथ, सारे रिमोट, सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, टेक्स आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबके साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दें. दोस्तों के साथ डिस्कनेक्ट कर दें फॉर 10 मिनट्स एटलीस्ट. वाई? बिकॉज यानी यूं समझ लें आप अपने ब्रेन को रेस्ट दे रहे हैं. आप कहेंगे सर सोते हैं तो रेस्ट मिल ही जाता है ना. नो, सोते हैं तो रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता. वो आपकी फिजिकल बॉडी को रेस्ट मिल रहा होता है. आपकी मेंटली अगर आपके दिमाग में थॉट्स ने आपकी जो है वो आपके ब्रेन को ऑक्यूपाई किया हुआ है तो आपका ब्रेन भी काम ही कर रहा होता है. और जो माइंड आपका काम कर रहा होता है, तो आप जब सुबह उठते हैं तो बहुत सारे लोग 10 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठ के थके हुए ही होते हैं. उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि बॉडी ने आराम किया है, जहन ने आराम नहीं किया. जहन में सोचें घूम रही होती है. तो वो उन सोचों को ठीक करने के लिए या उसको उससे निजात हासिल करने के लिए, एटलीस्ट उसकी जो एक्टिविटी लेवल है उसको स्लो करने के लिए जरूरी है कि आप जो है वो सॉलिट्यूड में बैठना शुरू करें. यानी अकेले बैठना शुरू करें. एटलीस्ट उस वक्त कुछ ना सोचें, उस वक्त सिर्फ सांस लें, अपने आप में फोकस करें, सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करें. मैं इससे पहले कई बार ये बात मेंशन कर चुका हूं कि ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हीलिंग प्रोसेस द ह्यूमन बीइंग हैज एवर बीन ब्लेस्ड. यानी बहुत सारी नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत जो अपेरेंटली नजर आती है वो है आपका ब्रीदिंग स्टाइल. अगर आप अपने ब्रीदिंग स्टाइल को ठीक कर लें और सॉलिट्यूड में बैठ के सिर्फ सांस लेने के ऊपर तवज्जो दे दें तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो दिमाग में जो जहनी तौर पे जो कश्मकश का शिकार होते हैं, जो थॉट प्रोसेस आपको तंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स आपको ऑक्यूपाई करके रखती हैं, उनसे आप निजात हासिल कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स. कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे, लेकिन सॉलिट्यूड में बैठना शुरू करें. डिस्कनेक्ट करें अपने आप को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के साथ. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को जो है वो कॉट अप ना होने दें. ठीक है जी. तो ये कुछ 5 रिचुअल्स थे. अगर आप ये थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे अपने आप को इसमें जो है वो
इन्वॉल्व करते हैं, इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं इस हैबिट को, तो फिर आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे. बट डू इट फॉर एटलीस्ट 30 days एंड जस्ट सी द रिजल्ट्स कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से, क्या वो आपको लाइफ दे रही है या नहीं दे रही है. वरना होगा ये कि आप 50 के हो जाएंगे, फिर 60 के हो जाएंगे, एंड देन रिग्रेट्स ही करते रहेंगे कि काश ये हो जाता, काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते. सो इट्स ऑलवेज अबाउट कि जी लाइफ खत्म हो रही होती है और आप रिग्रेट्स कर रहे होते हैं कि यार वो वक्त था कि आज कुछ कर लेते तो कुछ हो जाता. ठीक है जी. सो आई होप यू फाइंड दिस सेशन इंटरेस्टिंग वन. द फोर्थ वन इज डेली लर्निंग. डेली लर्निंग. एवरी मास्टर थिंक्स लाइक अ बिगनर, सो इट शुड बी अ डेली लर्निंग. आप अपना टाइम सेट करें, जिस फील्ड के अंदर भी आप हैं या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं या जो पर्पज है आपका लाइफ का, उससे रिलेटेड जो भी लर्निंग्स रिक्वायर्ड हैं उस लर्निंग को अपना टाइम दें. सो दिस इज द एक्शन पॉइंट. ये फोर्थ वन था. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का.